आज हम स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने सेल वाला पोर्शन था वो कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अबाउट मूवमेंट ऑफ substances across cell membrane, because whenever we discuss the movement of substances, that means the movement of substances across the cell membrane. In last chapter we discussed the structure of a cell, a generalized cell, either of a plant cell or of an animal cell. We discussed over there, actually they are having a organized cell membrane. Cell membrane is a living material structure, so through which the material either pass inside or outside the cell. So it's a barrier. It will control the movement of materials across the cell membrane. अब इसमें हमने ये देखना है कि जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है इसमें कौन कौन से प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके जरिए जो मटेरियल्स होते हैं आइदर दे विल लीव द सेल और दे गेट एंटर इनटू द सेल। उसमें अगर आप देखिए तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेसेस हमने डिस्कस करने हैं उसमें एक तो पहला डिफ्यूजन, सेकेंड ऑस्मोसिस, थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक और बहुत थोड़ा सा जो टच दिया जाता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है, वो आप लिख लेते हैं बट नॉर्मली वैसे वो आता नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, उसके बाद एडिशनली हमने इसमें पढ़ना होता है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये वो प्रोसेसेस है जिनके जरिए जो मटेरियल्स होते हैं आइदर दे विल गेट एंटर इनटू द सेल और लीव द सेल। सबसे पहले वी स्टार्ट विद डिफ्यूजन। If we start with diffusion, so what is the definition of diffusion? Movement of atoms, ions or molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Down the concentration gradient. Down the concentration gradient. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आप डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं, इसमें आप देखिए एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है ये मूव करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर। अब जिस रीजन से ये मूव करते हैं वो कौन से वाला है? रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट डज इट मीन? if we write concentration, what does it mean? Any idea? What it will show? It will show the number of atoms, ions or molecules present anywhere. Suppose this is a cell, and outside the cell, if the concentration of oxygen is 21%, and inside the cell, this concentration is 16%. Is it? So right here we are having two different types of concentrations. If this concentration is higher, what does that mean? The number of oxygen molecules, basically oxygen is a gas.
It's present in air. So its percentage ratio is 21%. So what does that mean? The molecules of oxygen will be in higher numbers outside the cell, is it? As we are having only 16% oxygen inside the cell. So mean the number of molecules, atoms or ions of oxygen present inside the cell, they are lower in the number when you compare this percentage with the outer atmospheric concentration of oxygen. So this will show the difference, right? In the number of molecules are more outside as compared to the inner side of the cell. Clear? So suppose if these are 21 molecules, let's suppose if we are having 21 molecules of oxygen outside the cell, and how many molecules are there inside? 16 molecules. So they move from region of higher concentration to a region of lower concentration. So where they are in lower concentration? Inside the cell. So in that condition, these molecules will move towards the cell. They will move inside the cell according to the definition, right? Then what does it mean? Downward concentration gradient. So we have to discuss this concentration gradient. Concentration will discuss the number of atoms, ions or molecules. They show their concentration. But when we talk about the gradient, so suppose person A is standing over here, applies a perfume on his shirt. So the molecules of perfume will surround this person, is it? The concentration of these molecules of perfume will be higher around or in the vicinity of this person. So another person is standing at position B. Over there, the molecules are not present. So the concentration is lower. What will happen? These molecules start moving to person B. Is it clear? So if you make a graph over here. So this line, which is moving towards the person B from person A, this shows the concentration gradient. I mean the molecules are moving from higher concentration towards the lower concentration. ठीक है? इसमें देखिए molecules यहाँ पर ज्यादा है, तो ज्यादा concentration से molecules जो है किस साइड पे जा रहे हैं? Lower concentration पे, जहाँ पे उनकी concentration जो है वो क्या है? कम। अच्छा, उसके बाद ये जो लाइन होती है ना, इसे लाइन ऑफ ग्रेडियंट का नाम हम देते हैं। अब अगर मैं एक और लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो अब देखिए यहां पे स्टीपनेस ज्यादा है लाइन की और यहां पे उसकी स्टीपनेस जो है वो कम है। अब ये जो स्टीपनेस होती है लाइन की, ये हमें क्या शो करेगी? रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब देखिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होते हैं वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का मुख्तलिफ होता है। लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट गैसेस, इवन गैसेस को अगर आप लेते हैं तो कुछ गैसेस जो होती हैं वो लाइटर इन वेट होती हैं, कुछ हैवियर होती हैं। जो लाइटर होती है उनमें डिफ्यूजन रेट क्या होगा? फास्टर होगा। इसी तरह अगर आप लिक्विड्स को लेते हैं, बास लिक्विड्स ऐसी होती हैं जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ हनी and compare it with water, which liquid will be having faster rate? Water. Reason? So water is less viscous as compared to honey, is it? So the rate of diffusion will be faster in water. तो यही बात और याद रखिए कि ये जो लाइंस होती हैं ये ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन को तो शो कर रही हैं और फिर दूसरा रेट को भी शो कर रही होती हैं। डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब अगर ये इस तरफ मूव कर रही है तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रही होती है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे जो शो हो रही है वो कौन सी चीज शो हो रही है? रेट। कि जितना लाइन स्टीप ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना तेज होगा, और जितनी लाइन की जो स्टीपनेस है वो कम हो जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही स्लो हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखिए कि जो ये प्रोसेस है डिफ्यूजन का, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का नाम भी देते हैं। It is called passive transport. So what is the reason why we call it passive transport? Any idea?
Basically, this process do not require any type of energy to carry out. ये जो प्रोसेस होते हैं इसको कैरी आउट करने के लिए हमें किसी किस्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती उस प्रोसेस को आप नाम देते हैं पैसिव। अब यहाँ पे जो गैसेस मूव कर रही हैं या कोई लिक्विड मूव कर रहे हैं उनके अंदर कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, इसलिए आप इसको क्या नाम देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक और बात याद रखिए, डिफ्यूजन सिर्फ सॉलिड्स में नहीं होती, लिक्विड या गैसेस में होगी। क्या रीजन है इसकी? ये प्रोसेस सिर्फ या तो गैसेस में होते हैं या लिक्विड में होता है। व्हाई नॉट इन सॉलिड्स? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर far greater among the molecules in solids, so they are tightly bound. So that is the reason they cannot leave each other. So due to the higher forces of attraction in solids, it's not possible. If it's possible, what will happen? If we mount 3 or 4 whiteboards over here, but on that wall we don't have anyone, what will happen next day? They all start moving to that wall, but it never happens. Why? Because the forces of attraction among molecules in solids are higher than liquid and gases, least in gases. So that is the reason this process will be fastest in gases. Clear? अच्छा, उसके बाद अगर आप देखिए इसकी एग्जांपल्स में एक और बात हमें याद रखनी है कि वैसे तो देयर इज नो कंडीशन टू हैव अ मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन की कंडीशन नहीं होती। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के बगैर ही जो होते हैं वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन भी हो सकती है। डिफ्यूजन का प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन। हमारे सेल्स के अंदर भी होता है डिफ्यूजन, लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब जैसे लाइक आप देखिए हमारे पास मैंने वो परफ्यूम की एग्जांपल दी। अब इस परफ्यूम के अंदर क्या है कि कोई ऐसा बैरियर नहीं, कोई मेम्ब्रेन नहीं, ए से बी तक आने के अंदर बीच में कोई भी ऐसा हर्डल नहीं है। देयर इज नो मेम्ब्रेन वेयर दीस मॉलिक्यूल्स विल क्रॉस डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं विदाउट एनी बैरियर। फिर ये मेम्ब्रेन के थ्रू भी मूव कर सकते हैं। So now let we discuss 2 examples, first in plants and then in animals. Plants and animals. If we take the example of animals, suppose if this is an alveolus, around this alveolus we have blood capillaries. These are red blood cells, and then the plasma. So blood gets entered into the lungs, is it? So this arrow shows sometimes you are asked by the examiner to label the parts, is it? Suppose if the examiner asks you, if I label over here point A, then B, then C, and after this it will be D, and examiner asks you label the part where most of the carbon dioxide will be present. So what will be your answer? Okay, Amna, oh, sorry, Mariam. Mariam's answer is A. Yes, Hadia. We have no idea. Amna. D. No. It will be A. Because this blood is coming from the body, is it? Through pulmonary artery. Pulmonary artery gives blood to lungs, and then it enters into capillaries. So that's why this region will be having the highest concentration of carbon dioxide, because the pulmonary artery is bringing blood that contains most amount of carbon dioxide, is it? Just to
remove it from the body, from blood, through your lungs. So that is the reason this point A will be having the highest concentration of carbon dioxide. Clear? So this arrow will show the highest concentration of carbon dioxide. But as it moves through this capillary, by the fuel, carbon dioxide will get entered into alveolus. Is it clear? So it means as this carbon dioxide is diffusing, it's crossing membranes. First, it will cross the membrane of capillary, then of alveolus. So it means the process of diffusion can also take place across membranes. Is it clear? Okay, on the other hand, when you inhale, the concentration of oxygen will be highest over here. Is it? Then the blood which is leaving the lungs will contain more amount of oxygen. So this oxygen from here is moving towards the heart. So another question is there. Which blood vessel take this oxygenated blood to the heart and in which compartment of the heart? Pulmonary vein, left atrium. Good. It's pulmonary vein and it will take blood to the left atrium. Right? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि जहां से ब्लड एंटर हो रहा है वो लंग्स की तरफ आ रहा है. जो ब्लड लंग्स की तरफ बॉडी से आ रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक हो गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हाईएस्ट होनी चाहिए और यहाँ पे लीव कर रहा है लोएस्ट हो जाएगी. क्लियर? अच्छा, अब तो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है कि हम ऑक्सीजन जो होती है उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करवा के अपनी बॉडी की तरफ भेज रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव कर रहे हैं. So this is gaseous exchange. In this gaseous exchange, the process of diffusion is involved. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? आदि आपको समझ आएगी? श्योर? कोई कंफ्यूजन? वो पूछ लेनी है आपने. ठीक है. अच्छा, इसके बाद देना प्लांट्स को देख लीजिए. अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो अगर हम प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस. अब जो लोअर एपिडर्मिस है यहां पे हमारे पास गार्ड सेल होते हैं. मीन दीज आर द गार्ड सेल्स. ये ज्यादा होते हैं, मैं खैर एक ही बना रहा हूं. तो ये एपिडर्मिस की लेयर है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. एंड लोअर एपिडर्मिस इज प्रोवाइडेड विद दीज गार्ड सेल्स. इनके अंदर एक ओपनिंग है जिसको हम स्टोमा कहते हैं. स्टोमा इज अ सिंगुलर वर्ड. जब ये बहुत ज्यादा होते हैं हम स्टोमेटा लेते हैं. दिस इज प्लूरल वर्ड, स्टोमेटा एंड स्टोमा. अच्छा, अब ये स्टोमा वो जगह है जहां से गैसेस एक्सचेंज होनी है. अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें यहां पे पैलिसेड मेसोफिल्स होते हैं. मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो मेसोफिल टिश्यूज बना रहे होते हैं और ये दो तरह के होते हैं. अपर एपिडर्मिस के लोअर साइड पे जो होते हैं दे आर कॉल्ड पैलिसेड मेसोफिल. ठीक है. ये लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट वाले स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे लाइट एब्जॉर्ब होती है. और जो दूसरे टाइप के यहां पे उनको स्पॉन्जी मेसोफिल्स कहते हैं. अच्छा, डे टाइम पे क्या होता है? प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे आप देखिए यहां पे अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरह काम कर रहा था. आपको पता है कि आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है उसका परसेंटेज कितना है? 21%. ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट इन योर एयर. सो आप जो इनहेल करते हैं वो आप सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते. आपको पता है जब आप एक्सहेल करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होती है. दो तरह की एयर है, आप एक इनहेल करें और दूसरी एक्सहेल. इनहेल का मतलब आप जब लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं एयर को. एक्सहेल कौन सी है? जिसमें आप रिमूव कर रहे हैं एयर को. इसके अंदर जो ऑक्सीजन है
उसका परसेंटेज 21%। इसका ऑलमोस्ट 5 to 6% आप इस्तेमाल कर देते हैं। स्टिल आपके ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है जब आप एक्सहेल करते हैं? दैट कंटेन्स 16% ऑक्सीजन। क्लियर? अच्छा, अब देखिए इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब आप इनहेल करते हैं तो कितनी होती है वॉल्यूम? 0.04. गुड। 0.03 to 0.04%. This is the percentage of carbon dioxide in air. अच्छा, जब आप इसको एक्सहेल करते हैं इट इज अबाउट 4%। अच्छा, अब ये देखिए यही ग्रेडियंट डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस, जो आपको हेल्प आउट करता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर। आप इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, किस तरह? आपकी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेस्पिरेशन का अगर आप देखिए C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर चूंकि सेल्स के अंदर ये रेस्पिरेशन चल रहा होता है, सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। So it means carbon dioxide is being produced in your cells. So cells cannot retain that carbon dioxide. They will release that carbon dioxide as a waste. So that waste will come into your blood. So blood transfer that carbon dioxide towards your lungs just to exhale it into the outer atmosphere. So why it happens so? Because जब रेस्पिरेशन होती है ना आपके सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जा रही है, उसकी परसेंटेज बढ़ गई और वो आपके ब्लड के अंदर 4% हो गई। अब ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर और ये ज्यादा देर हम अपने ब्लड के अंदर से रखेंगे, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो आपके ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बड़ा लीथल हो सकता है। इसलिए हमें फिर से फौरी रिमूव करना है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड 4% ब्लड के अंदर है, इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्लड के अंदर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक में कितना है? 0.03 to 0.04। तो हमने पढ़ा था डिफ्यूजन के मुताबिक मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब बॉडी के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा। तो इसीलिए यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से अब मूव कर रही है टुवर्ड्स लंग्स ताकि इसे रिमूव किया जा सके। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे इसको हम रिमूव कर देते हैं तो हम 16% ये देखिए ये ऑक्सीजन भी साथ एक्सहेल कर रहे हैं। अब हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वो ब्लड के अंदर क्या होगी? लो होगी। बाहर कितनी है? 21%, जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है। इसलिए तेजी के साथ वो जो एयर होती है वो हमारे रश करती है टुवर्ड्स ओवर लंग्स। तो यही एक रीजन है कि फिर ऑक्सीजन जो होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। सो ये वो एडवांटेज है डिफ्यूजन का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो सेम इज द केस विद प्लांट्स। के प्लांट्स में अगर आप देखें तो प्लांट्स सुबह के टाइम पे करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब उस दौरान जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल्स के अंदर होती है दैट विल बी यूज्ड अप। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो। बाहर क्या है? 0.03 या 0.4 जो भी है वो ज्यादा है। तो मॉलिक्यूल्स जो थे कार्बन डाइऑक्साइड के मूव थ्रू दीस स्टोमेटा इनसाइड और यहां से जाके ये कहां पे चले जाते हैं? स्पॉन्जी मीसोफिल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि यहां पे जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लांट्स जो होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, water, in the presence of light and chlorophyll they make carbohydrates. Plus 6 oxygen plus 6 water molecule. This is a complete equation for photosynthesis. So over here this
oxygen is a waste material that should be removed instantly. क्योंकि इसकी अमाउंट जो होती है वो इन सेल्स में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है when we compare with the outer atmospheric oxygen. तो डे टाइम पे प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन यहां पे। और रात के वक्त क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस, ऑक्सीजन अंदर कम हो जाएगी क्योंकि रेस्पिरेशन 24 आवर्स चलता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये अक्सर सवाल आता होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर 24/7 क्या होता है, 24/7 24 घंटे ऑल द टाइम, ये 24/7 इसमें चल रहा होता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ डे टाइम पे होती है। इसलिए देखिए ऑक्सीजन तो हर वक्त प्लांट्स ने यूज करनी है, डे टाइम पे जो बन रही है कुछ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिशनल जो उसको रिमूव कर रहे हैं। लेकिन रात में अब ऑक्सीजन नहीं बन रही, सेल्स ने रेस्पायर करना है, उसके लिए फिर क्या होता है कि अंदर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट कम हो रही है, तो फिर वो बाहर से रात के वक्त उसको अपटेक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए याद रखिए कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस है, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसी वजह से ये एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं ये जो मटेरियल्स हैं इनको एक्सचेंज करते हैं। एनी कंफ्यूजन? क्लियर? चलो उसके बाद वी स्टार्ट विद ऑस्मोसिस, सेकंड प्रोसेस। Okay, when we define osmosis, another process, particularly we use this osmosis process only for the movement of water molecules. Clear? इसमें सिर्फ हमने देखना है कि ऑस्मोसिस की जो टर्म होती है ये सिर्फ किसके लिए यूज की जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ही यूज की जाती है। अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो हम इसे लिखेंगे net movement of water molecules from a region of not higher concentration, rather we will use higher water potential, from a region of higher water potential to a region of lower water potential across a semi-permeable membrane. Again, it's down the concentration gradient, right? It's again down the concentration gradient, but across a semi-permeable membrane. Okay, so this is the definition of osmosis. Osmosis means movement of water molecules. So over here we have to discuss only water molecules movement. आपसे कोई भी पूछ लेता है ये osmosis का जो process है क्या है, simply you will answer movement of water molecules. अब ये कहां से कहां होती है, हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। अगेन दिस प्रोसेस इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो इफ एनी प्रोसेस इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, you need not to use any type of energy over there. So it means this process is also a passive transport like diffusion. So both diffusion plus osmosis, both these processes are called passive transport. ये प्रोसेस भी कैसा है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई कंसंट्रेशन साइड से ये लोअर कंसंट्रेशन साइड पे ये आ रहे हैं। अच्छा अब इसमें देखिए कि लेकिन देयर इज अ कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, सो द कंडीशन इज
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमें यहाँ पे देखिए कि ये मूवमेंट जो होती है एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके होती है, उसके बगैर नहीं हो सकती, ठीक है नहीं? जिस तरह डिफ्यूजन तो मेम्ब्रेन के बगैर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई मेम्ब्रेन हो, उसके क्रॉस ये मूवमेंट होगी। अब लाइक वाटर पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, चलिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलोफेन पेपर लगा दीजिए। सेलोफेन पेपर जो होता है ना, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे बिहेव करता है। उसकी पार्टीशन कर देते हैं, एक को कंपार्टमेंट ए और दूसरे को कंपार्टमेंट बी बना देते हैं। अब जो कंपार्टमेंट ए है, these are the water molecules, दोनों साइड्स के हमने फर्स्ट कीजिए कि यहां पे मैंने दोनों साइड्स पे पानी लिया होगा,